Hello, my dear students. Welcome back to the online classes of Royal International School. This is Pooja Peswani, your math teacher. How are you? I wish and I pray you all are fit and fine. Stay home, stay happy with your family, with your loved ones. Okay? So, before we start the syllabus, before we start the video, I just want to give you a message, not for you, but for your family, but for your loved ones also. Beta, just stay home, just stay happy, don't go anywhere without any reason, just break the chain of COVID-19. As you know, COVID-19 is still going on. We all are suffering from this disease, this pandemic. So stay home, stay happy, be happy with your family, whatever you have and whatever is going on. Okay, just stay happy. So beta, we are going to start the new session with new syllabus. This is your new book. Yeah, this is your new book for class first. This video is for class first. This is your book, math book. Okay, and book sets are also available at your schools, so you can purchase from your schools. Okay, let's start the syllabus. There are 16 chapters in this books. As you seen, there are 16 chapters. Okay, so we will do one by one. Okay, so first of all we are going to start chapter number first. Comparison. Do you know about what is comparison, and do you know about comparison? Okay, no problem if you don't. Comparison means to compare two or more things. Now I'm just in Hindi. Comparison means होता है बेटा दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन करना, मतलब तुलना करना. तुलना से तो आप समझ सकते हो ना, तुलना करना जैसे आपका आपके भाई से, आपका आपकी बहन से. ठीक है, तो हम कंपैरिजन करते ही रहते हैं ना, तो वैसा होता है. ठीक है, कंपैरिजन हम किस किस बिहाफ पे कर सकते हैं. कंपैरिजन वी विल डू कंपैरिजन फ्रॉम द थिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर साइजेस, एजेस, कलर्स. ओके, एंड मैनी मोर थिंग्स. मतलब कलर्स के बिहाफ पे कर सकते हैं, साइज के बिहाफ पे कर सकते हैं, उनकी एज के बिहाफ पे कर सकते हैं, और शेप के बिहाफ पे कर सकते हैं. इन चीज़ों के बिहाफ पे हम कंपैरिजन करते हैं. ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि कंपैरिजन क्या होता है और कैसे करते हैं हम. सपोज यू हैड स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस कंपैरिजन बिटवीन डिजिट्स 1 and 5. ओके, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है ना कंपैरिजन बिटवीन डिजिट्स. विच वन इज ग्रेटर, यू हैड स्टडीड विच वन इज ग्रेटर. 1 इज ग्रेटर और 5 इज ग्रेटर. 1 बड़ा है या 5 बड़ा है? यस, करेक्ट, 5 इज ग्रेटर देन 1. 5 इज ग्रेटर देन 1. तो इस तरीके से हमने डिजिट्स के बीच में कंपैरिजन तो लास्ट क्लासेस में पढ़ा है ना. हाँ, आप लोगों ने सबने पढ़ा है, सो जस्ट रिमेंबर दैट. ओके, तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे थिंग्स के बीच में कंपैरिजन. फर्स्ट टॉपिक इज बिग एंड स्मॉल कंपैरिजन ऑन बिहाफ ऑफ देयर साइज एंड देयर शेप्स. कंपैरिजन हम यहाँ किसके बिहाफ पे करेंगे? साइज और शेप के बिहाफ पे. बिकॉज स्मॉल और बिग हम तभी बोलते हैं ना जब हमको पता होगा कि साइज कैसी है, उनका शेप कैसा है. जस्ट लाइक देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ बॉय एंड एन एलिफेंट. बॉय सेइंग दिस इज बिग, इट मीन्स बॉय बोल रहा है कि दिस इज बिग, मीन्स एलिफेंट इज बिग. एलिफेंट इज बिग, boy is small. Yes, now in this picture a boy and a rat. The boy is saying this is small because the boy is bigger than a rat, so boy is saying this is small. rat क्या है? small, क्योंकि rat छोटा है. Here elephant is bigger than a boy and here mouse and a rat is smaller than a boy. ओके, तो कंपैरिजन समझ में आया. साइज के भी यहाँ पे है तो हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं. सो योर एक्टिविटी फर्स्ट इज टेक द बिग फिश. टेक द बिग फिश. दिस इज बिग और दिस वन इज बिग. विच वन इज बिग? दिस वन इज बिग. सो टिक ऑन इट. ओके, हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सी फिश बड़ी है. तो ये फिश तो आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, छोटी है, एंड दिस वन इज बिगर देन दिस. Okay, so tick on it. Okay, now move on to next. Take the small fruit.
Here we will tick on small fruit, not big. So it is big or it is big. Which one is big? A mango is big or a watermelon is big. So as you know, a mango is smaller than a watermelon because a watermelon is bigger than a mango. तो कौन सा बड़ा हुआ, कौन सा छोटा हुआ हमारे, क्योंकि हमें यहाँ पे छोटे पे टिक करना है बेटा. तो कौन सा हमारा फ्रूट छोटा है? मैंगो. तो हम किस पे टिक करेंगे? मैंगो पे. समझ में आया? आपको अच्छे समझ में आया बेटा? ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 6. हियर इज बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट. देखो वहाँ हमने बिग और स्मॉल पढ़ा, लेकिन यहाँ हमारा चेंज हो गया, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, बिकॉज देयर आर ओनली वन थिंग्स. ओके, वहाँ पे एक ही चीज़ थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं. तो देखो हमारी ये डिग्रीज हैं, ये आप जब क्लास में आएंगे ना तो आपको इंग्लिश वाली मैम भी आपको ईजिली समझाएंगे. आप ग्रामर का टॉपिक है बेटा ये डिग्रीज. ओके, देन यू विल स्टडी about comparison of adjectives, then you will easily know what is the degrees and where we will use it and how we will use it. okay, तो ये आपको इंग्लिश वाली मैम इजीली बता देंगी. यहाँ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको कैसे होता है. देखो वन थिंग बिग, आप नॉर्मली पढ़ते हैं बिग, बिग, बिगर, बिगेस्ट. बिग मीन्स अगर when we are talking about one thing only, then we will say this one is big. Okay, when we will talking about two things, then we will say this is bigger than this one. Okay, and then we will talking about more than two things, then we will use it biggest. Okay, तब हम biggest का यूज़ करते हैं. तो ये आप लोग इजीली पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इतना सा ध्यान रखना है कि अगर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, जिसमें हम EST लगाते हैं. ठीक है, जैसे बिग का बिगेस्ट, स्मॉल का स्मॉलेस्ट. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू एक्टिविटी 2. टिक द बिगेस्ट. एज यू सीन देयर आर 3 flowers. ओके, सो टिक द बिगेस्ट. सबसे बड़ा जो होगा हम उस पर टिक करेंगे. तो मैंने आपको बताया ना, अगर 2 से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात होती है तो हम कौन सी डिग्री का यूज़ करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं. ये हमारा इंग्लिश का टॉपिक है, तो हम इंग्लिश वाली मैम से तो उनसे अच्छे से क्लियर कर लेना आप ये टॉपिक. तो यहाँ आपको सिर्फ बिगेस्ट पे टिक करना है. सो सी, दिस वन इज दिस वन एंड दिस वन. विच वन इज बिगेस्ट? यस, this flower is biggest. Okay, now next, tick the smallest. Here we will tick on the smallest animal: rabbit, sheep and cow. Which one is smallest? A rabbit is smallest among them. Okay, now move on to next page. Long and short. Long मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा. जैसे बिग और स्मॉल होता है, वैसे ही हम लॉन्ग शॉर्ट की भी बात करते हैं. डिफरेंस होता है बिग स्मॉल और लॉन्ग शॉर्ट में. ओके, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस होता है. सो एज यू सी हियर इज अ पिक्चर. माई स्कर्ट इज लॉन्ग. दिस गर्ल इज सेइंग माई स्कर्ट इज लॉन्ग, एंड दिस गर्ल इज सेइंग माई स्कर्ट इज शॉर्ट. देखो इस गर्ल की जो स्कर्ट है वो शॉर्ट है, मतलब छोटी है, एंड हियर इसकी जो स्कर्ट है वो बड़ी है, लंबी है. ओके, तो इसलिए हम कहेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट. ओके, नाउ एक्टिविटी 3. टिक द चाइल्ड विथ लॉन्ग हेयर. सो एज यू सीन देयर आर 2 pictures of girls. Okay, this girl have short hairs, but this girl have long hairs. So which child has long hairs? This. So tick on it. Okay, now next, tick the short animal: snake and snail. Okay, so snake बड़ा होता है, ये snail बड़ा होता है. स्नेक आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, स्नेक बड़ा होता है. ओके, तो स्नेक तो शॉर्ट हो ही नहीं सकता, तो हम किस पे टिक करेंगे? स्नेल पे.
Okay beta, so that's it. We will do next activities in our next video from page number 8. You will do till page number 7 in your books. I hope you understood whatever I explained. Okay, so stay home, stay safe, be happy with your family, with your parents and your sibling also. Okay, so we will meet in our next video with next topic.